السلام علیکم، میرا نام محمد الیاس چشتی ہے اور آج ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں بزنس ٹاک سینٹر ملتان میں۔ تو آج کی جو پریکٹیکل کلاس ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں لیکوڈ ڈش واش۔ عام روٹین میں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، کچن میں استعمال ہوتا ہے برتن واش کرنے کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ مکمل پریکٹیکل دیکھیں گے کہ لیکوڈ ڈش واش ہم کیسے بنا رہے ہیں، اور ویسے ہی آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، ہر گھر میں ضرورت ہے اور ہر گھر کا افراد اس کو بآسانی بنا سکتا ہے۔ تو آج کی پریکٹیکل ویڈیو اور پریکٹیکل کلاس شروع ہے۔ تو ہمارے پاس جو انگریڈینٹس موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہے پانی، لیکن میں تو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آر او پلانٹ کا ہو، فلٹریشن پانی ہو تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے 4 کلو گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ موجود ہے سلفیوننگ ایسڈ، اس کو صرف والا تیل بھی کہتے ہیں، کالا تیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی پرسنٹیج ہے 90%، سلفیوننگ ایسڈ اس کو بولتے ہیں۔ مارکیٹ میں موجود ہے، کیمیکلز کی دکان پر بآسانی مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس شیمپو بیس، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم انگلش میں کہیں تو اس کو کہتے ہیں SLES، سوڈیم لارک سلفیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ تھک ہے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہے تھوڑا سا، اس کو شیمپو بیس بولتے ہیں۔ یہ بھی کیمیکلز کی دکان پہ بآسانی مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ کلر ہے، کلر جس طرح کا آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس گرین کلر موجود ہے، یہ بھی ہم ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسٹیرک ایسڈ یہ موجود ہے، اس کو عام روٹین میں کیمیکلز کی دکان پر ٹاٹری بھی بول لیتے ہیں، سٹرک ایسڈ، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ٹوٹل جو انگریڈینٹس ہیں 1 2 3 4 اور یہ 5، اور اس کو تھک کرنے کے لیے ہمارے پاس سالٹ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر۔ یہ ٹوٹل 2 4 5 اور 6، یہ 6 انگریڈینٹس ہیں ہمارے پاس، کیمیکلز کی دکان سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہیں۔ لینے کے بعد ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ اسی طریقے سے ہر گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اگر بزنس کرنا چاہیں تو آپ اپنا برانڈ بھی مارکیٹ میں لانچ کر سکتے ہیں۔ آج جو ہم بنائیں گے احسان بھائی یہ بتائیے گا کتنے روپے کلو کاسٹ آئے گی اس کی تقریباً؟ یہ تقریباً آلموسٹ آ جائے گی کوئی 65 روپے، 65 تقریباً 65 روپے کلو میں تیار ہوگا۔ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیں لیکوڈ ڈش واش، وہ اس میں جو 500 ml ہے وہ تقریباً اس ٹائم اس کا ریٹ چل رہا ہے کوئی 180 روپے، 180 روپے کی 500 ml کی بوتل ہے، اور آلموسٹ 450 روپے میں تقریباً کلو میں وہ سیل کر رہے ہیں۔ ہماری کاسٹ آئے گی 65 روپے، 65 روپے کلو اور 450 روپے کلو۔ یہ کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کوالٹی اس سے ہائی کرنی ہے تو آپ 10 روپے اور بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے بھی ہائی کرنی ہے تو اور 10 روپے بڑھ جائیں گے۔ یعنی کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں برانڈیڈ کو، تو تقریباً کتنے روپے میں کاسٹ آ جائے گی ہماری؟ یہ جو ابھی ہم بنا رہے ہیں یہ 65 روپے اس کی ایکچوئل کاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لیکوڈ کی بات کریں، ٹھیک ہو گیا۔ بوٹل سٹیکر ہے وہ اس کی لیبر کاسٹ ہے، الیکٹریسٹی کاسٹ ہے وہ اس کی الگ اس کی کاسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ لینی ہیں۔ لینے کے بعد آپ مینول طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اس کو مینول گھر میں اگر یوز کرنا ہو تو مینول بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ کمرشل گریڈ پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک مکسر کی ضرورت ہے۔ مکسر کے بغیر آپ کو جو ٹرانسپیرنٹ کوالٹی ہے وہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ جو آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں لیمن میکس کا بالکل مرر کی طرح ہوتا ہے، شیشے کی طرح، تو وہ کوالٹی آپ کو ہمیشہ مکسنگ پروسیس میں ہی اس کے بعد ہی ملے گی، بہتر ہو گیا۔ اور جو اس کی سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ اس کی فلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ آپ اس کی فلنگ جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہاتھ سے فلنگ کرنا چاہیں گے تو وہ بوٹل خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو صاف بھی کر لیں کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے جگاڑ لگا کے اس کو کرنا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر سٹیکر کی چپک نہیں آئے گی صحیح طرح سے، سمجھ گیا۔ تو اس کے لیے آپ کو فلنگ مشین کی ضرورت ہے، وہ بھی آپ اس ٹریننگ سینٹر سے آپ کو پرووائڈ ہو جائے گی۔ تقریباً 75,000 to 80,000 کی وہ فلنگ مشین ہے، جس میں آلموسٹ موئسچرائزرز بھی فل ہو جاتے ہیں، جو ہلکی لیکوڈ فارم میں کریمز ہوتی ہیں وہ بھی اس سے فل ہو جاتی ہیں، لیکوڈ سرف بھی اور ٹوائلٹ کلینرز بھی اور ڈش واش بھی، مطلب جتنے بھی لیکوڈز ٹائپ کی پروڈکٹس ہیں وہ اس سے فلنگ ہو جاتی ہیں۔ بنانا چاہیں تو گھر بھی بنا سکتے ہیں،
प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहें तो इसको आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस भी कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं अगर कोई बंदा आपसे सीखना चाहे? इसके अलावा हम कॉस्मेटिक्स सिखाते हैं ज़्यादातर, उसमें फेशियल रेंज है, क्रीम्स हैं, स्किन वाइटनिंग है, नाइट क्रीम्स हैं उसमें, और उसके अलावा उसमें जो मोस्टली जो आजकल हेयर जेल्स चलती हैं वो भी हम सिखाते हैं। बाकी हाउस होल्ड की जितनी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं हाउस होल्ड में वो भी हम उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, ये है जी इंग्रेडिएंट्स, डालेंगे मिक्सर के अंदर। चलें। आ जाएं भाई। पानी, सबसे पहले डालना है पानी। हाँ जी, 4 किलोग्राम पानी हमने डाल दिया है जी लिक्विड मिक्सर के अंदर। ठीक हो गया, पानी मिक्सर के अंदर चला गया। अब शैम्पू बेस लाएँ जी। इसके बाद हमने डाल देना है शैम्पू बेस। शैम्पू बेस है 500 ग्राम। इसको आधी डालेंगे, आधी। 250 ग्राम पहले डालेंगे इसके अंदर, यानी कि 500 ग्राम आप स्केल करने के बाद हाफ पहले डाल देंगे। डालने के बाद और डालो, थोड़ी लग रही है। ले जी 250 ग्राम आपने डाल दिया 4 किलो पानी के अंदर। अब 500 ग्राम, टोटल 500 ग्राम डालिए। 250 ग्राम पहले डाल दिए, वो स्केल हुआ था 1 ठीक है, किलो का। ठीक है। उसको हमने लेकिन आधे 4 किलो की फार्मूलेशन के मुताबिक हमें 500 ग्राम चाहिए। हाँ जी, 4 किलोग्राम पानी के अंदर हमने 500 ग्राम शैम्पू बेस डाल दिया। शैम्पू बेस बहुत ज़्यादा थिक होता है, ये आप देख रहे हैं। मिक्सर को चला देंगे जी। मिक्सर को चलाएं जी 1 मिनट, इससे कैसे डाल देंगे। लें जी मिक्सर चलाने से पहले इसके अंदर 1 चम्मच यानी कि हाँ जी सिंपल अल्फाज में बोल दूं को टाटरी डाल देनी है आपने। तकरीबन बनता है 1 चम्मच 10 ग्राम। 10 ग्राम से तकरीबन थोड़ा सा कम बढ़ेगा, तकरीबन ये 5 से 6 ग्राम होगा। लें जी, ये 3 चीज़ें डाल दी हैं। 1 चम्मच हमने डाल दिया इसके अंदर टाटरी, 4 किलो पानी और 500 ग्राम यानी कि आधा किलो शैम्पू बेस डाल के मिक्सर को चला दिया। लें जी, मैकिंग शुरू हो गई है इसकी। हाँ जी, अब ये जब तक आप इसकी शैम्पू बेस मिक्स नहीं हो जाती तब तक इसको आपने चलने देना। ठीक हो गया। जब शैम्पू बेस अच्छी तरह पानी के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है, तो फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ओके ओके। तकरीबन 5 मिनट के प्रोसेस के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी शैम्पू बेस पानी के अंदर, तो पानी के अंदर उस वक्त ये इसका मिक्सिंग, ये झाग है, झाग आप जब इसको आप 5-6 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो इसकी झाग भी बैठ जाएगी और ये ट्रांसपेरेंट भी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, नहीं 5 ग्राम नहीं है, ये 2 ग्राम है। ये 2 ग्राम 3 ग्राम, वो आपने कलर जितना रखना हो। हम इसको बिल्कुल हल्का सा ग्रीन शेड दे रहे हैं, इसका कलर बाद में भी सेट किया जा सकता है। ठीक हो गया, अभी 2 ग्राम कलर भी डाल दिया। 2 ग्राम कलर डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है जी 500 ग्राम। 500 ग्राम है, इसको आपने एकदम से नहीं डालना, इसको आपने धार बना के डालना, क्योंकि ये थिकनेस का काम भी इसके अंदर करेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया। तकरीबन नहीं जी, है ही आधा किलो। ले जनाब, इसके बाद परफ्यूम्स ले आएंगे। अब ये हम इसमें परफ्यूम डाल रहे हैं, ये तकरीबन 20 ग्राम का इसमें आप डाल सकते हैं। ये हमारे पास इस टाइम कैपरी की है, वैसे आप लेमन मैक्स की भी मिल जाती है, लेमन मैक्स की मिल जाती है, स्ट्रॉबेरी की मिल जाती है, और इसके अलावा और बहुत सारी होती है जो आप मार्केट से जो आपको अच्छी लगे वो आप डाल सकते हैं। दो 3 मिनट के प्रोसेस के बाद डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। कितना हो जी? नमक कितना? नमक इसमें जितना आपने थिक करना हो उतना नमक डालना है, थिकनेस के मुताबिक। कोई मकदार नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ये थिकनेस के लिए ज़्यादा नमक चाहिए होता है। ठीक है। सर्दियों में जो टेम्परेचर ठीक होता है इस वजह से इसको कम चाहिए होता है। तो हमारे पास ये इस टाइम मेरे ख्याल 100 ग्राम मौजूद है। कितना? 100 ग्राम
100 ग्राम है, इसमें से ये चम्मच 100 ग्राम साल्ट डाल देंगे जी। देखिए थिकनेस हाँ इसकी जी। आती जा रही है। अभी हमने इसमें तकरीबन 40 ग्राम डाला है, ये 60 ग्राम हो गया तकरीबन। ये जितना थिकनेस आप बढ़ाना चाहें उस लिहाज से आप साल्ट को मेंटेन कर सकते हैं। थिक होना शुरू हो गया अंदर से, साल्ट डालते जाएंगे और इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। नीचे से निकालो जरा। पीएच को चेक करना है और थोड़ा सा निकाल लेंगे इसमें से। नीचे से निकालो। अच्छा जी, ये अब हम इसकी पीएच देख रहे हैं। तो अभी इसकी पीएच जो है वो 1 पर है ठीक हो गया। यहाँ पर। तो इसको हमने तकरीबन 6 पर लेके आना है। ठीक है। तकरीबन 5.5 हो या 6 हो तकरीबन, या ठीक है। 6.5 तक, मतलब इसकी रेंज में होनी चाहिए, ठीक है, 5 से 6 की रेंज में। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वापस डालो। डाल दें वापसी। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे जी कास्टिक लई डालेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास कास्टिक लाई। मिक्सर चलाओ ये। निकाल दें अली इसको बाहर, मिक्सर को चला देंगे। चलाने के बाद कास्टिक लाई कितनी डालनी है जिसके अंदर? ये इसके अंदर आपने वैसे नॉर्मली हम जो भी डाल रहे हैं 100 ग्राम डाल रहे हैं। ठीक है। ये आपने 50 से 100 ग्राम डालने के बाद चेक करनी है, क्योंकि उसको आपने पीएच खुद- बढ़ाना है हाँ, आपने। खुद देखना है कि उसके पीएच जो है वो कहाँ पर आके बैलेंस हो रही है। पीएच बढ़ाने के लिए हमें कास्टिक लाई चाहिए। ये कास्टिक लाई बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये 50% बनती है। कास्टिक सोडा ले लेना है 17 केमिकल्स का, और 1 किलो पानी और 1 किलो कास्टिक, ये आपने किसी प्लास्टिक के बर्तन के अंदर डाल देना है। ठीक है, और उसे अच्छी तरह से हल होने देना है। जब ये आप कास्टिक सोडे के अंदर पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसको लिहाजा ठंडा होने देना है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये थिक एक पानी की तरह ये बन जाएगा। इसको हम कहते हैं कास्टिक लाई। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम पानी और 1 किलोग्राम कास्टिक सोडा, इसका मतलब ये है कि ये 50% बन गई है। अगर आपने आधा किलो पानी और आधा किलो कास्टिक सोडा लेना है, कम मिकदार में बनाना है, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। कास्टिक लाई डालने के बाद मिक्सर को बंद कर देते हैं और इसको दोबारा से ये पीएच, पानी तो नहीं लगाना ना। आप मुझे दें जी, ये पीएच पेपर है, इसको दोबारा से आप डिप कर सकते हैं इसके अंदर। ये पीएच पेपर, इसको करेंगे डिप। जी जी होता है। ये डिप करने के बाद आप इसको बाहर निकालेंगे और आप ये देखें, ये करें जी, मेंशन कर सकते हैं आप इसके साथ ना। अभी भी 1-2 पर ही है। ये अब 2 पर है, ये देख रहे हैं। अब हमने इसको मेंटेन करना है, दोबारा इसमें डालनी पड़ेगी। 6 पे करना है ना मेंटेन इसको। 6 पे लेके आना। अच्छा, उसके लिए फिर से हम मिक्सर चलाएंगे और इसका पीएच बढ़ाने के लिए कास्टिक लई को डालेंगे लिक्विड डिश वाश के अंदर। डालने का तरीका ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से डालते हैं। ये हमारे पास कितनी थी कास्टिक लई? ये हमारे पास थी कितना पानी था? 200 ग्राम की कास्टिक ठीक है, और 500 ग्राम का पानी। 500 ग्राम पानी के अंदर 200 ग्राम कास्टिक डालने के बाद ये लई तैयार हुई है, और वो लई डाली जा रही है लिक्विड डिश वाश के अंदर। ठीक है, बनी बनाई भी मार्केट में अवेलेबल है, आप खुद भी बना सकते हैं। दोबारा से इसको पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए ये पेपर है हमारे हाथ में, जो पहले डिप किया था वो ये है। अब मेंटेन करने के लिए दोबारा से इस पेपर को इसके अंदर डिप करके मेंशन कर लिया जाएगा। ये पेपर है,
बंद कर दें, मिक्सर बंद कर दें। मिक्सर बंद करने के बाद दोबारा से इसको चेक कर लें। ये अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर और ये जो पहले वाला था इसके कलर में फ़र्क आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये चली गई है 10 पे। 10 पे नहीं, ये मेरा ख्याल है चली गई है यहाँ पे 13 पे। 13 पे। ठीक है, अब इसको वापस यहाँ पर लेके आने के लिए हमें दोबारा सल्फोनिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, सल्फोनिक भी आप डाल सकते हैं, ये आप इसमें सिट्रिक एसिड से भी कर सकते हैं, लेकिन सल्फोनिक से करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो वैसे ही थिक रहेगी। ठीक हो गया। सिट्रिक एसिड से अगर आप दोबारा करेंगे तो सिट्रिक एसिड से ये होता है कि प्रोडक्ट की पीएच तो बैलेंस हो जाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो उसमें पतलापन आना शुरू हो जाता है ज़्यादातर। ठीक हो गया। इस वजह से अगर इसमें हम पानी की मिकदार डालते हैं तो उससे भी इसकी पीएच को लेवल किया जा लेकिन सकता है। उसमें फिर उसकी झाग कम हो जाएगी, फोमिंग बूस्टर वो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। अच्छा, अब ये अगर 13 पर इसकी आ रही है पीएच, तो क्या समझते हैं कि ये ठीक नहीं है? अभी ये वैसे घर में यूज़ करने के लिए ठीक है, लेकिन कमर्शियल ग्रेड में इसको सेल आउट करने के लिए वो तो मसला नहीं है, तरीका बता दिया वीडियोस के अंदर। हाँ, सल्फोनिक नहीं पड़ा हुआ तो वरना इसको हम दोबारा इसकी मेंटेन कर देंगे। मसला नहीं है। जो ये वीडियोस देख रहा है उसको पता है कि इसकी मेंटेन कैसे करनी है पीएच को। सल्फ्यूरिक एसिड डाल के भी पीएच मेंटेन कर सकता है। इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। अब ये मिक्सिंग हो गया अच्छी तरह से, लेकिन इसके ऊपर तैयार है लेकिन झाग है। इसको हम स्टे देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटा। जब स्टे देंगे तो इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी और ट्रांसपेरेंट शुदा हमारा नीचे जो रहेगा मटेरियल लिक्विड डिश वाश, वो इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियोज़ में दिखाएंगे।